آج کا خوبصورت ترین جو دن ہے اس کے مطابق جو آج خداوند نے کلام بخشا ہے وہ ہے لوکا کی انجیل، اس کا 24واں باب، اس کی 6 آیت۔ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے، یاد کرو کہ جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا تھا۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے آج کے دن کے مطابق جو خداوند نے کلام بخشا ہے روح القدس کے وسیلہ سے، تاکہ ہم اس مکاشفہ کو اور بھید کو جان سکیں کہ جی اٹھنے کا کیا مطلب ہے، کہ یسوع مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھے تیسرے روز، تو اس کے پیچھے جو خداوند کا مقصد ہے اور اس کے پیچھے ہماری کیا رہائی ہے وہ ہم دیکھیں گے اور سیکھیں گے خداوند کے روح القدس کے وسیلہ سے۔ ہم سب جانتے ہیں کلام کے وسیلہ سے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے دکھ اٹھائے اور وہ صلیب پر انہوں نے اپنی جان دے دی۔ کیا ہمارا یسوع جب جان دے دی تو کیا وہ مردہ پڑا رہا؟ ہرگز نہیں۔ وہ ایسا خدا نہیں کہ وہ قدرت نہ رکھے۔ یسوع مسیح نے کہا مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور واپس لینے کا بھی اختیار ہے، یعنی ہمارا ایسا خدا ہے، ہم ایسے خدا پر ایمان رکھتے ہیں جو زندہ ہے، اور اگر وہ مر بھی جاتا ہے تو اس میں ایسی قدرت پائی جاتی ہے کہ وہ دوبارہ سے اپنے آپ کو زندہ کر سکتا ہے۔ کوئی طاقت اس کو مار نہیں سکتی، کوئی اس کو مردہ بنا نہیں سکتا، اور کوئی اس کو یہ نہیں کر سکتا کہ وہ ابد تک اور ہمیشہ کے لیے مردوں میں پڑا رہے، قبر میں پڑا رہے اور اس میں سے بدبو آئے۔ ہمارا خدا ایسا خدا نہیں ہے، ہم زندہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارا کوئی خدا بت نہیں ہے، ہمارا خدا کوئی بے جان چیز نہیں ہے، وہ زندہ ہے اور اس کے اندر قدرت ہے کہ اس کو کوئی بھی قبر دبا نہیں سکتی۔ آج ہم اس مکاشفے کو اور زیادہ سیکھنے کے لیے خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے پیدائش کی کتاب، اس کی 3 آیت، اس کا 3 باب، اس کی 15ویں آیت ہم دیکھیں گے۔ اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے۔ اب یہاں پر ہم آج جو خداوند کا دن ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں فتح کا دن۔ پہلی بات ہے جو یسوع مسیح کا جی اٹھنا ہے یہ فتح کو ظاہر کرتا ہے۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے یہ دیکھیں گے کہ جب خدا باپ نے اپنے بیٹے کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ جان دے، تو یہ خدا باپ کی مرضی تھی۔ اب اگر کوئی باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو کوئی کام سپرد کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ یہ وہ کام پورا کرے، کیونکہ اگر وہ پورا نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ باپ ہار رہا ہے، کہ باپ کی مرضی پوری نہیں ہوئی، باپ کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ جو باپ چاہ رہا تھا، جو باپ کی چاہت تھی وہ پوری نہیں ہوئی، تو باپ جو ہے وہ شرمندہ ہوگا۔ اور اگر باپ کسی کو یہ کہتا ہے کہ دیکھ، میں یہ جسمانی طور پر سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر زمین پہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو کسی اور تیسرے کو چیلنج کرتا ہے کہ دیکھو میرا بیٹا جو ہے وہ تم لوگوں کے ساتھ ایسا کرے گا، دیکھنا وہ آ کے تجھے کچلے گا، دیکھنا میرا بیٹا کیا کرتا، تو کتنے فخریہ انداز سے باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو اس کے پاس بھیجے گا کہ تو یہ کام میرے واسطے کر کے آ، کیونکہ اس کے پیچھے جو ہے وہ باپ کی مرضی ہے، اور باپ للکار رہا ہے کہ دیکھ میرا بیٹا تجھے ہرائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر خدا باپ کی مرضی ہے کہ بیٹا جو ہے وہ اس کو، ابلیس کو، شیطان کو کچلے، ہرائے۔ یہ ہار جو ہے سب سے پہلے خدا باپ کے دل میں ہے، خدا باپ کی مرضی ہے۔ اب جب بیٹا جو ہے وہ ہراتا ہے تو اس میں باپ کی فتح ہے، باپ کو بہت زیادہ فخر محسوس ہوگا کہ جو میں چاہتا تھا، جو میری مرضی تھی، جو میں نے چیلنج کیا کہ اے شیطان تو نے میرے لوگوں کو، انسانوں کو ہرایا ہے، میرا بیٹا آ کے ان کے وسیلہ کے لیے وہ تجھے ہرائے گا، اور ہم اس کے ساتھ، اپنے انسانوں کے ساتھ ہیں، ہم دونوں، تینوں باپ بیٹا روح القدس، اور ہم مل کے اب تجھے ہرائیں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے خدا باپ کی
जीत है, जो कि हम कहते हैं खुदा बाप की फतह। खुदा बाप की फतह है सबसे पहले कि बाप ने शैतान को यीशु मसीह के नाम से हरा दिया। पहली फतह बाप की। हम शुक्रगुजारी करते ज़रूर हैं, लेकिन यीशु की, हमें खुदा बाप की पहले शुक्रगुजारी करनी चाहिए, क्योंकि ये बाप ने काम शुरू किया। यीशु मसीह ने जब कहा कि ज़मीन पर कलाम सुनाया, तो यीशु मसीह ने कहा कि मुझे बाप ने भेजा है। हम बाप का जिक्र नहीं करते, हम नहीं जानते कि पीछे फैसला किसका है, किसको धन्यवाद भी कहना है, और वो कौन है? खुदा बाप। क्योंकि यीशु मसीह ने बार बार ये कहा कि मेरे बाप की मर्जी है। मेरा बाप मुझे इसलिए प्यार करता है क्योंकि मैं अपनी जान देता हूँ। क्यों बाप प्यार करता है? क्योंकि बाप की मर्जी खुद का बेटा पूरा कर रहा है, इस वजह से बेटा जो है वो कहता है वो मुझे प्यार करता है। तो बाप की रजा है कि हम लोग जीत जाएं। तो जो फतह है वो सबसे पहले खुदा बाप ने हमारे लिए सोची। ये इरादा, ये ख्याल, ये फिक्र, ये प्यार, ये मोहब्बत, ये शफकत जो है, और शैतान को जो हराना है, वो सबसे पहले किसके दिल में आया? ख्याल आया, बाप के दिल में आया, और बाप ने ये किया। तो जो फतह है वो सबसे पहले बाप की है। आज बाप की फतह का दिन है, खुदा बाप की फतह का दिन है। यीशु मसीह के खुदा और बाप की फतह का दिन है। दूसरा हम देखते हैं कि जो हम ये सारा ये देखते हैं कि एक जो है भेजने वाला है, और एक वो है, यानी भेजने वाला कौन? खुदा बाप। और जो भेजेगा उसकी फतह हुई। तो जो जाके जंग लड़ता है, जो जाके मुकाबला करता है, जो जाके कुचलता है, उसकी भी फतह है। उसने उसको, शैतान को हराया। यीशु मसीह ने शैतान को हराया, उसको कुचला। शैतान चाहता था कि यीशु मसीह गुनाह में किसी तरह से पड़ जाए, हर तरह की आजमाइश डाली। और जब गतसमनी बाग में उसने बहुत चाहा कि खुदावंद यीशु मसीह ये प्याला ना उठाएं, लेकिन यीशु मसीह ने खुदा बाप की ताबेदारी की, खुदा बाप की मर्ज़ी पूरी की, खुदा बाप का काम किया। और सलीब पर जब जान खुदावंद ने अपनी रूह अपने बाप के हाथ सौंपी, तो कहा, उससे पहले कहा, तमाम हुआ, कि जो काम मुझे दिया गया है कि मैं शैतान को हराऊं, कुचलूं। तो दूसरा हमारे पास ये हुआ यीशु मसीह। तो यीशु मसीह ने शैतान को हराया। तो दूसरी फतह यीशु की। हम देखते हैं कि जो भेजता है वो भी जीत गया, वो भी फातेह है, और जिसने जंग लड़ी और शैतान को हराया वो भी फातेह है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि तीसरा, ये खुदावंद किसके लिए कर रहे थे? ये खुदा बाप किसके लिए कर रहे थे? ये किसके लिए मंसूबे बांध रहे थे? फतह बाप की है, जो मंसूबा बांधता है, जो उसको भेजता है, जो जंग करता है, उसकी फतह है। लेकिन खुदा बाप भी पाक हैं, और यीशु मसीह ज़मीन पर रह कर उन्होंने कहा कि मेरे अंदर गुनाह साबित करो। यानी खुदावंद यीशु मसीह मुकम्मल तौर पर फातेह ठहरे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने तो कोई गुनाह नहीं किया, उनको फतह की क्या ज़रूरत थी? खुदा बाप ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। क्या खुदा बाप कहीं हारे थे जो उनको फतह की ज़रूरत थी? क्या यीशु मसीह कहीं हारे थे जो उनको फतह की ज़रूरत पड़ गई? क्या शैतान ने, अबलीस ने खुदा बाप को हराया था, जो खुदा बाप कहें कि नहीं अब मैं तुझे हराऊंगा? नहीं, हरगिज़ नहीं। शैतान ने खुदा बाप को नहीं बागे अदन में हराया था, ना ही वहाँ पर यीशु मसीह मौजूद थे कि शैतान ने यीशु मसीह को किसी गुनाह में वर्गला के यीशु मसीह को हराया। और उसके अलावा जब ज़मीन पर यीशु मसीह भी आए, तो शैतान ने जहाँ जहाँ भी उनको आजमाया, तब भी यीशु मसीह शैतान से नहीं हारे। तो फिर ये फतह क्यों? तो क्यों खुदा बाप को फतह की ज़रूरत पड़ी? क्यों यीशु मसीह को फतह की ज़रूरत पड़ी? क्या उनको अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए फतह की ज़रूरत पड़ी?
तो हम देखते हैं कलाम मुकद्दस के मुताबिक कि फ़तह की इन दोनों की ज़रूरत नहीं थी, तो भी आज हम ये बात कर रहे हैं कि ये खुदा बाप भी फातेह है और यीशु मसीह भी फातेह है, और उन्होंने अपना ये काम पूरा करके तमाम करके फ़तह हासिल की। लेकिन किसके लिए? हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हव्वा और आदम ने गुनाह किया तो ये हारे थे, और उनकी वजह से तमाम इंसान, बनीनो इंसान, दुनिया का एक एक बच्चा जो पैदा होता है, एक एक इंसान जो आगे पैदा होने वाला है, जो पैदा हो चुके हैं, जो पैदा हैं और जो ज़िंदा हैं और जो आगे भी आने वाले हैं, हर एक इंसान जो था हव्वा और आदम के गुनाह के बायस हारे हुए थे। अब शैतान ने इंसान को हरा दिया हुआ था, वो हार चुका था। कैसे हारा था? जब हम गुनाह करते हैं और वो हमसे गुनाह करवा लेता है तो हम हार जाते हैं। फ़र्ज़ करो हम लूडो खेलते हैं या कोई भी ऐसी गेम खेलते हैं, किसी के साथ भी खेलते हैं, और हम अच्छे तरीके से ना खेलें, हिकमत से ना खेलें, दनाई के साथ ना खेलें, फ़हम के साथ ना खेलें, हुनर के साथ ना खेलें, समझ के साथ ना खेलें, हमें पहचान ना हो कि ये गेम खेलनी कैसे है, तो जो दूसरा हमारे सामने बैठा होगा और वो यकीनन हार ही जाएगा। इसी तरह आदम और हवा जब बाग़े अदन में गए तो खुदावंद ने उनको पहचान दी, खुदावंद ने उनको हुक्म दिया कि तुम लोग ये गुनाह ये ना करना, तुम लोग मेरी बात मानो। अगर तुम लोगों ने ये फल खाया, खुदावंद ने उनको मना किया था कि तुम लोग ये फल ना खाना, लेकिन उनको इतनी समझ, अकल, दनाई और फहम नहीं थी, लेकिन उनको पहचान नहीं थी, लेकिन उनको हुक्म मानना तो फ़र्ज़ था, उनको खुदा की बात सुनना तो फ़र्ज़ था। बेशक उनको इस बात की समझ थी या नहीं, पहचान थी या नहीं, या ज़्यादा मकाशवा नहीं समझते थे या गहराई नहीं समझते थे, तो कोई बात नहीं। लेकिन इसमें हम ये देखते हैं कि उन्होंने खुदा बाप की ताबेदारी ही नहीं की, उन्होंने खुदा की बात को सुना अनसुना किया, उन्होंने खुदा को लाइट लिया कि कोई बात नहीं, खा लेते हैं, खैर है, जहाँ पर हैं वहीं रह जाएंगे। लेकिन जो उनकी भूल थी, उनको ये बात समझ नहीं थी कि इसका नतीजा बाद में क्या बनेगा। तो आज हम लोग भी यही करते हैं। मैं कहती हूँ बेशक हमें पहचान नहीं, बेशक हमें ज़्यादा कलाम का नहीं पता, बेशक हमें नहीं समझ, हमें खुदा के मकाशफों का, खुदावंद के भेदों का, कलाम का, रूह कुद्स के वसीला से नहीं पता, हमें आयतें नहीं समझ आती, तो ना आए, कोई बात नहीं। तो क्या अंदर खुदा बाप की इज़्ज़त भी नहीं कि खुदा है वो? जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं कि तुम लोग ये बड़े हैं, इनकी इज़्ज़त करो या इनकी बात मानो, तो हम उनको इस वक्त बहुत ज़्यादा आगे तालीम नहीं दे रहे होते। नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, तो ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, हम उनको ये नहीं कह रहे होते। हम सिर्फ डायरेक्टली उनको ये समझा रहे होते हैं कि वो बड़ा है, बात मानो। इसमें और क्या मकाशवर और क्या तालीम देनी है? इतना ही हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि बड़े के आगे आपने नहीं बोलना, बड़े की इज़्ज़त करनी है, और अगर कोई बड़ा आपको कोई हुक्म देता है आपने उसकी बात सुननी है और वैसा ही करना है जैसा वो कह रहा है। इसमें इतना मकाशवा हम उस वक़्त बच्चों को नहीं सिखाते, लेकिन सिर्फ इज़्ज़त और ताबेदारी हम सिखाते हैं, और जो बड़ा होता है उसकी बुजुर्गी और अजमत बताते हैं। इसी तरह ये तो बड़ों की बात हुई, लेकिन जो माँ बाप होते हैं वो बड़ों से भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो पैदा करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, जवान करते हैं, तो उनकी इज़्ज़त जो है वो कितनी ज़्यादा होनी चाहिए कि वो जब हम उनको ये कहते हैं, माँ भी अपने बच्चों को ये सिखाती है बाप ने कहा है तो ये करना है, बाप भी अपने बच्चों को ये कहता है कि माँ ने कहा है ये करना है। हम इसकी अच्छाई बुराई नहीं बयान कर रहे थे, हम इसके फ़ायदे नुकसान नहीं बयान करते, हम बहुत सी बातें आगे नहीं करते कि हाँ ये करोगे तो माँ और प्यार करेगी। हम ये नहीं बयान करते कि बाप और करोगे तो बाप और शॉपिंग कराएगा और पैसे देगा या और नौकरियां करना शुरू कर देगा। ऐसा नहीं है, तीन ही बहुत होती हैं। जो शख्स अपने बच्चों को पालने के लिए 2-2, 3-3 नौकरियां भी एट अ टाइम कर रहा होता है, बहुत से चीज़ों में फंसा होता है, तो हम उन बच्चों को सिर्फ ये सिखा रहे होते हैं कि बाप की इज्जत है और वो करनी है। बेशक हुआ
बाप एक नौकरी करता है, बेशक उसकी पॉकेट में थोड़े पैसे हैं, वो आपको नहीं दे सकता ज़्यादा, तो भी यही सिखाया जाता है कि वो बड़ा हुक्म मानना है। हम ये अपने बच्चों को सिखाते हैं। इसी तरह आदम और हवा को जब खुदा ने ये कहा कि ये नहीं करना, उनके दिल में ये क्यों नहीं आया कि ये हमें पैदा करने वाला तो ये तो हमारा बाप है, इसने हमें बनाया है, पैदा किया, ज़िंदगी दी है, तो जो ये कह रहा है हमने ये बात माननी है। लेकिन उनके दिल में ये बातें नहीं आई, उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज किया और बहुत हल्का लिया, और उनको ये नहीं मालूम था कि इसका क्या नुकसान होगा, हम क्या खो देंगे, हमारे साथ क्या होगा, हम अकेले और यतीम हो जाएंगे, फिर बाप का साया ख़त्म हो जाएगा और हम लोग अकेले तन्हा रह जाएंगे और हमारी कोई मदद नहीं करेगा, हमारे ऊपर कोई और बैठ जाएगा, हमारे सर पर कोई और बैठ जाएगा और वो जालिम है। लेकिन जो वो ये नहीं सोचे थे कि इसमें फ़र्क क्या है, जो हमारा बाप है वो तो शफकत वाला है, लेकिन जो बाद में हमारे सर पर बैठ गया तो वो तो हमें चीर फाड़ देगा, वो तो हमें कत्ल कर देगा, वो तो हमें मारने को है, वो तो हमें फाड़ने का है, वो तो हमारा दुश्मन है, हम तो उसके हाथ के नीचे आ जाएंगे। ये बातें खुदा ने अगर उनको नहीं भी बताई थी, लेकिन तो भी उनका फ़र्ज था कि वो खुदा की बात मानते कि ये हमारा बाप है जिसने हमें पैदा किया। अब हम ये देखते हैं कि जब गुनाह कर दिया जाता है, यानी गुनाह क्या है, मैं कोई बहुत सी बातें डिटेल में नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जब आपको मालूम है कि ज़िंदा आसमान का खुदा है जिसने हमें पैदा किया है, आप यही सोच लो, आप मुकाशों में से या आयतों में से अपने लिए क्यों मतलब ढूंढते फिरते हो और उसके अंदर गहरा डूब कर ही आपने खुदा की इज्जत करनी है। ये हरगिज़ नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए, ऐसा दिल हमारा नहीं होना चाहिए, ऐसी नीयत हमारी नहीं होनी चाहिए, ऐसे ख्याल हमारे नहीं होने चाहिए। हमारे अंदर सिर्फ यही होना चाहिए कि वो हमारा बाप है, हमने इसकी बात माननी है, उसमें हमारे लिए नुकसान है, भला है, हमारे लिए फ़ायदा है, जो कुछ भी है हमने ये नहीं सोचना, हमने सिर्फ इज्जत करनी है। लेकिन मैं जानती हूँ कि खुदा जो है वो भले हैं और उसके बाद हमारे साथ भला ही होता है और कभी भी हमारा नुकसान नहीं होता, क्योंकि खुदा हमारे लिए आंसू नहीं और कांटे नहीं हमारे लिए बोते, दुख नहीं बोते, बल्कि सिर्फ खुशियाँ बोते हैं, और कांटे दुख सिर्फ उन्होंने अपने लिए और अपने बेटे के लिए रख छोड़े। तो हमारी नीयत ये होनी चाहिए, हमें कलाम में से ढूंढते नहीं रहना चाहिए इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। अब जो शैतान था वो हवा और आदम पर गालिब आ गया, उसने वो गेम खेली, क्योंकि शैतान को पता था कि जब मैं ऐसे करूँगा तो ये यहाँ से निकल जाएंगे। वो उस वक़्त उनको फाड़ना चाहता था, उनका नुकसान करना चाहता, क्योंकि वो दुश्मन है, वो कभी नहीं चाहता हम खुश रहें, वो कभी नहीं चाहता हम सुकून में रहें, वो कभी नहीं चाहता हम ज़िंदगी पाएं, वो कभी नहीं चाहता हम मुस्कुराएं, हमारे अंदर इत्मीनान हो और हमारे अंदर तसल्ली हो, हम खुशियों से अपनी फैमिलीज़ के साथ रहें, वो कभी नहीं चाहता। इसी सोच की वजह से उसने उस वक़्त शैतान ने आदम और हवा के अंदर ये काम किया और बाप से जुदा किया। अब ये जो था शैतान जो था वो इंसान पर गालिब आ गया। अब ये जो गलबा था खुदा बाप को सता रहा था, वो जान गए थे कि इंसान हार गया। ये खुदा की और यीशु मसीह की हार नहीं है, ये इंसानों की हार है। तो इस हार को फतह में बदलने के लिए खुदा बाप ने एक मंसूबा बनाया कि ये कुचले। अब ये फतह जो है खुदा का मंसूबा है, जो मैं शुरू में बताती हूँ, जाहिर है जो मंसूबा पूरा हो गया तो खुदा जीत गए, खुदा बाप फतह याब हुए। इसी तरह जिसने ये जंग लड़ी और शैतान को कुचला और हराया, ये यीशु मसीह की फतह है। लेकिन इसके साथ जो हम लोग इंसान, तीसरी चीज़ जिनके लिए ये फतह का काम हुआ वो हैं इंसान, बनी नौ इंसान, दुनिया के इंसान, जिनके ऊपर जो है शैतान इख्तियार रख रहा था। लेकिन यीशु मसीह के वसीला से हम भी फतह याब हो गए। हमने कुछ नहीं किया, हवा और आदम गुनाह करके चले गए, यहाँ से रुखसत हो गए इस दुनिया से। उसके बाद ये जितने भी लोग इंसान पैदा होते हैं वो भी रुखसत होते जाते हैं, हम भी आए हम भी रुखसत हो जाएंगे। लेकिन कोई भी दोबारा इस हार को फतह में बदल नहीं सकता था। हम हारे हुए लोग थे। आज हमारी फतह का दिन है, जो यीशु मसीह, खुदा बाप के मंसूबे, मर्जी और यीशु मसीह के वसीला से आज हमें फतह मिली है। एक और बात, जब हम फतह याब होते हैं, जब हम दुनिया में देखते हैं स्कूल में रेस होती है तो बच्चे जो होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो जब
हर माँ बाप वहाँ पे अपने बच्चे को बैकअप देने के लिए आता है और कहता है कि आपने जीतना है, और बहुत ज़्यादा हम शाउट कर रहे होते हैं और अपने बच्चों का नाम पुकारते हैं। लेकिन जब सारे बच्चे होते हैं उनमें से अगर आपका बच्चा जीत जाए, और जो जीत रहा होता है, तो जब हम अपने बच्चे को पहले देखते हैं कि उस बच्चे की जीत में हमारी जीत होती है, हम ऐसे खुश होते हैं कि जैसे उस रेस में हम हैं। माँ बाप ऐसे, इसी तरह खुदा बाप बहुत फतह को वो इंजॉय कर रहे होंगे कि मैं जीत गया, मुझे जिताने वाला मेरा बेटा है। लेकिन जब बेटा रेस कर रहा था तो वो जिसने इतनी मेहनत की होती है, जिसने पसीना बहाया होता है, जिसकी टांगें थक गई होती हैं, जिसको सांस चढ़ रहा होता है, पूरा जिस्म दर्द हो रहा होता है, और वो जब जीत जाता है और फिर उसके बाद वो बैठता है, वो हाँफता है कि मैं थक गया, वो थकावट, वो दुख जो है वो सिर्फ उस रेस करने वाले ने सही है। तो जब वो जीत जाता है वो कितना खुश है। इसी तरह आज खुदा बाप कितने खुश हैं। आज यीशु मसीह जिन्होंने ये फतह जो है वो फतह हो गए हैं और वो जीत गए हैं, और जब देखा है पीछे मुड़ के तो शैतान को हरा दिया और वो आगे निकल गए हैं। तो यीशु मसीह की आज कितनी खुशी होगी। आज हमने ना सिर्फ अपनी, बल्कि आज हमने खुदा बाप की फतह में खुशी मनानी है। आज हमने यीशु मसीह की फतह में खुशी मनानी कि यीशु जीत के हैं। आप कितने खुश होंगे जब कोई जीत जाता है, कितनी खुशी होती है। आप ही रेस लगाते हो तो कितनी खुशी होती है कि मैं जीत गया, मैं जीत गई, मैंने उसको हरा दिया, मैं नंबर 1 हूँ, मैं फर्स्ट टाइम, मुझे ट्रॉफी मिली है, मुझे मेडल मिला है, ये है। कितनी हम अपनी जीत में खुश होते हैं। इसी तरह तीसरी जीत जो है, आखिरी जीत जो है, वो हमारी अपनी है। इसी तरह हम जब शैतान के साथ मुकाबला कर रहे होते तो हम जीत ही नहीं सकते। हमारे अंदर उतनी कुव्वत कुदरत नहीं है कि हम शैतान को हरा सकें। लेकिन जब हम यीशु का नाम लेते हैं और रेस में भागना शुरू करते हैं तो यीशु का नाम हमें जिता देता है, और हम कहते हैं वो हमने तुझे पीछे छोड़ दिया है शैतान, देख हम कितना आगे बढ़ गए। ये हमारी कुव्वत नहीं, ये हमारी टांगों का जोर नहीं, ये हमारे लंग्स नहीं कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा हम सांस ब्रीदिंग, क्योंकि जब हम भागते हैं तो हमारी जो सांस है वो भी उखड़ना शुरू हो जाती है। ये यीशु के लंग्स हैं, ये यीशु ने हमारे जिस्म में जान डाली है और हमारी सोच को ऐसा बनाया कि हमने जीतना है। हमारी ये जीत जो है वो हमारी अपनी नहीं है, वो जोर जो है रूह कुद्स के वसीला से हमारे दिल में आता है कि हमने इसको हराना है। हमारी सोच में मजबूती आती है, मैंने जीतना है, और हमारे जिस्म में रूह कुद्स की वजह से जान आती है कि जब हम भागना शुरू करते हैं। ये फजल यीशु मसीह के वसीला से है। तो ये जो जीत है ये हमारी नहीं है, और ना हम अगर हम जीत जाते हैं तो हम शैतान को जो हरा देते हैं, कभी नहीं सोचना हमारी जीत है, हमने उसको हरा दिया, क्योंकि हम हरा ही नहीं सकते। ये झूठ है, झूठ पे जिंदगी ना जुड़े। यीशु मसीह ने हमेशा ये कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यस जो सच है वो सिर्फ यीशु मसीह, राह हक और जिंदगी यीशु है, सच हक बरहक जो है वो यीशु है। तो यीशु के वसीला से हमने ये कबूल करना है कि हमने शैतान को हराया, और हमारी जीत जो हमारी रेस है, जो हमने शैतान हमारे साथ लगाता है, हर इंसान के साथ लगाता है, और उसको दोबारा पकड़ना और कुचलना चाह रहा होता है, और रोज़ाना कुचलना चाह रहा होता है। और जो सबसे बड़ा कुचलना जो उसने हमारे ऊपर जो हव्वा और आदम के वसीला से जो उसने हमारे सरों पर अपना इख्तियार रख दिया, जो शुरू में मैंने बताया कि वो हम नहीं जानते थे कि बाप, शफकत वाले बाप को हम छोड़ देंगे और वो हम उससे दूर हो जाएंगे, और फिर ऐसा हमारे ऊपर सर पे चढ़ के बैठ जाएगा जो हमारा दुश्मन है, जो हमें फाड़ना चाहता है। तो वो हमारे ऊपर ज़िंदगियों में होता है, और रोज़मर्रा दुख तकलीफ परेशानियां दे दे कर हमें कुचलता है, मारता है, फाड़ता है, रुलाता है, दुख देता है, हमें बीमारियों में डालता है, हमारे आंसू निकलवाता है, हमें तकलीफ़ देता है, जगह जगह हमें हराता है और शर्मिंदा करता है। कभी स्कूल में, कभी टीचर्स के सामने, कभी हमारे कुलीग्स के सामने हमें शर्मिंदा होना पड़ता है, हमारे माँ बाप के सामने, बहन भाइयों के सामने हमें ज़िल्लत और रसवाई उठानी पड़ती है। ये सब शैतान कर रहा था। क्यों?
क्योंकि हमने मसीह यीशु को अपनी ज़िंदगी में नहीं रखा। जब हम यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में रख लेंगे, उस फतह को अपनी ज़िंदगी में रखेंगे, तो ही हम इस शैतान से फतह पा लेंगे। अगर हमें ये हकीकी फतह चाहिए तो ये फतह आप कहीं से तोड़ के नहीं ला सकते, कहीं से ख़रीद के नहीं ला सकते। अगर आप शैतान को हराना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो आज हमारे पास मौका है और आज हम ये जान लें कि ये जो मकाशवा है, ये जो भेद है कि यीशु मसीह जीत चुके हैं, उन्होंने फतह पा ली है। और ये फतह उनकी ज़रूरत नहीं थी, ये खुदा बाप की ज़रूरत नहीं थी, ये फतह हमारी थी। हमारे लिए उन्होंने ऐसा किया ताकि हम शैतान से जीत जाएं और रोज़ाना जीते, क्योंकि ये जंग ऐसी है कि वो हमें रोज़ाना तंग करता है, सताता है और हराने की कोशिश करता है। लेकिन यीशु मसीह के वसीला से हम रोज़ाना उसको हरा सकते हैं। जब हम यीशु मसीह पर सबसे पहले ईमान ये रखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान देकर उसको कुचल दिया, हरा दिया, और यीशु मसीह तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठ के फतह याब हो चुके हैं, तो ये फतह मेरी फतह है। हर एक इंसान ने ये सोचना है, हमारी का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें, आप ये कहें कि ये फतह मेरी फतह है, ये सिर्फ मेरी फतह, ये ना सिर्फ मेरी फतह तो है, बाकियों की भी है। लेकिन जब आप दुआ करें तो अपने आप को इंडिविजुअली खुदावंद के सामने लेके आएं। आप खुदावंद से कहें कि ये मेरी फतह है, मेरी फतह के लिए तूने जान दी, मेरी फतह के लिए कि मैं जीतता रहूं, मैं कभी ना हारूं, और मैं आज तेरी वजह से है खुदावंद यीशु मसीह, मैं आपकी वजह से यीशु मसीह मैं जीतता जाता हूँ। ये फतह जो आज मैं अपनी ज़िंदगी में महसूस करता हूँ, और जब हम फतह याब हो जाते हैं तो कितना ही खुश होते हैं, कितना मज़ा आता है, कितना अच्छा लगता है फतह में। तो जब आप रोज़ाना फतह याब होंगे, जब आप रोज़ाना हराएंगे शैतान को, और जब अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप फतह याब होते जाएंगे, तो आप रोज़ाना जीत को मनाएंगे। ये खुशी जीतने की और शैतान को हराने की और फतह होने की, रोज़ाना आपको फतह होने की जो खुशी मिलेगी, ये यीशु मसीह के वसीला से है। तो अपनी जो फतह है वो हमारी जो फतह है, और जो ये फतह हम अपनी ज़िंदगी में हासिल करते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ उसके पीछे यीशु मसीह की फतह है। और आज हमने तीनों के लिए शुक्रगुजारी करनी है, खुदा बाप की फतह के लिए, यीशु मसीह की फतह के लिए, और हम सब इंसानों की फतह के लिए, और अपनी ज़ात की फतह के लिए भी आज हमने नारे मारने हैं कि हम जीत चुके हैं। तो जब कोई जीत जाता है ना, और जब तो खुशी होती है, और सबसे बढ़कर हम हल्का महसूस करते हैं, हमारा बोझ उतर जाता है कि देखो अब कुछ भी नहीं है, सब नया हो गया, अब कोई मुकाबला नहीं है, अब कोई मेहनत नहीं है। अब हमारी ज़िंदगी जिन बोझों के दबे, हम बोझों से दबी हुई थी, जिन गुनाहों से, शैतान से हम लोग हार के हम दबे हुए थे, आज उन सब से हम आज़ाद हैं। क्यों? क्योंकि हम जीत चुके हैं। जिस हार की वजह से हमें मौत का, गुनाह का, दुखों तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा था, वो हमारे आगे खड़ी थी, वो हमारे सामने थी, वो दीवार हमारे सामने थी, वो पहाड़ हमारे सामने था। ना तो हम उसे खोद के हम उसको पार कर सकते थे, ना उस दीवार को तोड़ के हम, और ना ही उस पहाड़ से छलांग लगा के हम दूसरी साइड पे जा सकते थे। हमारे लिए चारों साइड से सब कुछ बंद था, हम फंस चुके थे क्योंकि हम हार चुके थे। जब हम गुनाह करते हैं, खुदा का गुनाह करते हैं, जब हम खुदा की नाफरमानी करते हैं, जब हम खुदा की बात नहीं सुनते, जब हम खुदा का हुक्म नहीं मानते, जब हम खुदा का पर ध्यान नहीं देते, जब हम खुदा को खुदा नहीं समझते, हम खुदा को बाप नहीं समझते, हम उसकी ताबेदारी नहीं करते, तो हम गुनाह में फंस जाते हैं। फिर हम पहाड़ों के दरमियान में होते हैं, हम दीवारों में चुने जा चुके होते हैं, सारे दरवाजे खिड़कियां बंद हो चुकी होती जिसको हम खोल नहीं सकते। लेकिन उस कैद में वो हमारी हार है, वो कैद जो है इसीलिए मिली क्योंकि हम हार चुके थे। आज उस कैद से इसलिए रिहाई है क्योंकि हम जीत चुके हैं, हम फतह पा ली है। किसके वसीला से? क्योंकि हमने फतह जंग नहीं लड़ी, हमने पसीना नहीं बहाया, हमने दौड़ नहीं लगाई, हमने कुछ नहीं किया। हमारा दौड़ने वाला यीशु है, दौड़ाने वाला खुदा बाप है। हमने क्या किया? कुछ ना किया। और हमने कुछ नहीं भी किया तो वो पहाड़ जो हमारे आगे से हट गया। तो हमें कितना शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमने कुछ भी नहीं किया। खून पसीना, दुख, तकलीफ
कांटों का ताज, कोड़ों की मार, कील ठुकवाना, गुनाह ऊपर लेना, मर जाना, सब कुछ उसने किया और हम जीत गए। हम बैठे हुए हैं, हम ये भी सोचें कि अगर हम बैठे हुए हैं और कोई हमें आके कहता है कि आप जीत गए हो, कहें हम ये सोचेंगे ना तो हमने मुकाबला किया, ना हमने किसी चीज़ में हिस्सा लिया, तो ये ट्रॉफी कहाँ से आ गई हमारे पास? तो बैठे बिठाए जीत गए। ये कैसी खूबसूरत बात है, कितनी प्यारी बात है कि हम लोग बैठे बिठाए, कुछ ना किया और हम जीत गए। ना जंग की, ना लड़ाई की, ना पार्टिसिपेट किया किसी चीज़ में, ना हमारे मुकाबले में कोई खड़ा था और ना कुछ हुआ और हम जीत गए। ऐसी जीत सिर्फ और सिर्फ खुदा बाप के हुजूर और यीशु मसीह के हुजूर मिल सकती है, क्योंकि वो शफकत वाले हैं, उनको फिक्र है, वो हमें प्यार करते हैं। शैतान प्यार नहीं करता, उसकी बात ना मानो। गुनाह प्यार नहीं करता, उसकी बात ना मानो। खुदा बाप और बेटा और रूहुल कुद्स मोहब्बत हैं, वो हमें प्यार करते हैं, उनमें से सिर्फ मोहब्बत निकलती है। ऐसा वही कर सकता है जो आपसे मोहब्बत रखता है। उसने अपनी मोहब्बत की खातिर जो वो हमसे रखते हैं, हमें बैठे बिठाए सारे काम खुद कर दिए और हमें फतहयाब कर दिया। आज हम फतहयाब हैं, हम आज़ाद हैं, हम हल्के हो चुके हैं, सारे बोझ ख़त्म हो गए, मौत दूर हो गई, गुनाह की माफ़ी मिल गई, गुनाह से रिहाई मिल गई, गुनाह से हम पाक हो गए, रूह हमारी धुल गई, हमारे अंदर जो दाग थे, गंदी आदतें, बुरी आदतें जो थी, जो बदी की आदतें थी, वो हमारी सब खुदा जो है वो अपने कलाम के वसीला से निकाल डालेंगे। उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जब हम मेहनत करेंगे तो हर वक्त जब हम मेहनत करेंगे उसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ फतह और सिर्फ फतह ही मिलेगी। तो खुदा का बहुत शुक्र है कि हमारी जीत हो चुकी है, हम फतहयाब लोग हैं, हम हारे नहीं। अब हमारे लिए कोई काम नहीं है करने के लिए, कोई मेहनत नहीं है, पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ हम यीशु मसीह का नारा लगाएं और कहें कि यीशु मसीह हमारे एवज वो जीत गए, तो इसलिए हम जीते हुए लोग हैं। आज हमने सिर्फ अपनी जीत की खुशी जो हमें यीशु मसीह और बाप के वसीला से मिली है उसको मनाना है और उसके लिए नारे लगाने हैं और शुक्रगुजारी करनी है। और सारी ज़िंदगी हर लम्हे इस जीत के पीछे रहो। अगर हम इस जीत के पीछे रहेंगे तो हम जीतते ही जाएंगे। अगर आज हम इस जीत को छोड़ देंगे और इस जीत के पीछे नहीं जाएंगे, इस फतह के पीछे नहीं जाएंगे, तो हम हारे हुए लोग हैं ऑलरेडी, और हम पहले से ही हारे हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। खुदावंत का शुक्र है इस कलाम के लिए कि हम बाप, बेटा, रूहुल कुद्स की फतह के साथ साथ अपनी फतह की खुशी भी मारेंगे, इसके नारे लगाएंगे, खुशी मनाएंगे, और खुदा का बहुत शुक्र है इस खुशी के लिए, इस फतह के लिए। हालेलुया, आमीन।